سب سے پہلے میں خداوند یسوع کے لیے شکر گزار ہوں جس نے ممکن کیا کہ آج ہاللیلویا خداوند نے ممکن کیا کہ آج میں اس ہیونلی فائر چرچ میں آپ سب لوگوں کے لیے جو خدا نے مجھے بہت بلیسنگ کا دیا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ساتھ ہی پادری فرحان صاحب کے لیے شکر گزار ہوں جو پاسٹر انچارج ہیں, پاسٹر محبوب دانش صاحب کے لیے, بہن رابعہ ہمارے درمیان بیٹھی ان کی فیملی کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج شام میں یہاں پر آپ کے دوران خدا کے کلام کو لے کر آ سکوں. ہاللیلویا. اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, شاید انہوں نے تو مجھے دیکھا ہو, میں کہیں کو تو آج پہلی بار ملوں گا بھی یہاں پہ اور دیکھوں گا بھی بائی فیس. کچھ لوگوں کو بائی فیس میں جانتا ہوں جو آج کچھ فیملیاں یہاں پر آئی ہیں ثاقب بھائی کے ریفرنس سے, سسٹر کرن کراچی سے اوکے ادھر موجود ہے. ہاللیلویا. اور پھر اس کے علاوہ سسٹر ہیرا ہے, پھر ایک اور سسٹر تھے میرے ذہن میں نام چلا کہ فیملی سائمن. اوکے ویری گڈ. ہاللیلویا. خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے. آپ سب کا بھی کہ قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں اور آپ سب لوگوں کا بھی. آئیے کلام خدا کی طرف بڑھیں گے. مجھے 30 منٹس دیے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ آج وہ کلام کے وسیلہ سے ریسٹور ہوں گے. ہاللیلویا. 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 آئیے کلام خدا کو کھولیے گا جلدی کے ساتھ. پرانے عہد نامہ میں سے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 30 آیت کلام خدا میں سے آج شام ہم اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے. کلام خدا میں سے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب بلکہ اس کی آپ 30 آیت سے لے کر 40 آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مذبح کی آگ. چرچ کا نام بھی آگ, مضمون کا نام بھی, پادری فرحان کا نام بھی. اور جب آگ سے آگ ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاللیلویا. اور یقیناً آج باتوں کے شعلے یہاں پہ بڑھیں گے. آمین. پڑھیے گا پلیز. پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب اس کی 30ویں آیت میں کچھ یوں مرکوب ہے. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خدا کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا, اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا, 12 پتھر لیے, اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا. اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی, اور لکڑیوں کے کرنا سے چنا, اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا, اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوگندی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو. پھر اس نے کہا دوبارہ کرو. انہوں نے دوبارہ کیا. پھر اس نے کہا 6 بار کرو. سو انہوں نے 6 بار بھی کیا, اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا, اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس سے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا, آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے. آمین. اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سن اے خداوند, میری سن, تاکہ یہ لوگ جان جائے اے خداوند
तू ही खुदा है और तू ही ने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदा उनकी आग नाजिल हुई और उसने उस सौतनी कुर्बानियों को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। सो मेरे अजीजों, कलाम खुदा में से हमने जो सलातीन की पहली किताब में से पढ़ा, यहां पर दो अल्टर्स की बात की जा रही है, दो मजहबों की बात की जा रही है। मैं सबको बताना चाहता हूं, मजबा वो जगह है जहां पर कुर्बानी पेश की जाती है। मजबा वो जगह है जो खुदा और आपकी मुलाकात का रास्ता है, वो पॉइंट है जहां पर आप और खुदा मुलाकात करते हैं। मजबा हमारी हालतों को बदल के रख देता है। मजबा हमारी शिकस्त को पता के अंदर बदल देता है। मजबा ऐसी जगह है मेरे अजीजों जहां पर खुदा की आग उतरती है। मजबा वो जगह है जहां पर बेदारी जन्म लेती है। मजबा वो जगह है जहां पर गुनहगार रो रो कर तौबा करते हैं। मजबा वो जगह है जहां पर लोगों की आंखें खुलती है। मजबा वो जगह है जहां पर लोग चिल्लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अगर कोई इस्राएल के लिए खुदा है तो वो जिंदा यहोवा खुदा है। हालेलुया। सो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ये लड़का होनी चाहिए कि क्रिश्चियंस का खुदा कोई आम खुदा, वो ग्रेटेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैं सारी बातें आज चंद लम्हात के अंदर आपके साथ बयान करूंगा। हमारा खुदा आतशी खुदा है, वो ठंडा खुदा नहीं, वो सर्द खुदा नहीं, बल्कि वो खुद आतशी है। और उसके आल्टर पर क्या होनी चाहिए? ठंडक, आग। क्या होनी चाहिए? आग। और मेरे अजीजों, आग पाक करती है, सोने को खालिस कुंदन बना देती है। कभी वो लोग खालिस नहीं हो सकते जो मजबा से दूर रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में से लिखा है कि एलिया हो अकेला मैन ऑफ गॉड, अकेला, और कहां 450 नबी, अकेला मैन ऑफ गॉड। आपके सामने हजारों लोग क्यों ना हो जो शैतान के आल्टर पर काम करने वाले हैं, अगर एक भी आप में से कोई खुदा के आल्टर के करीब रहने वाला है तो सुन ले, वो लोग जानेंगे कि आपका खुदा। और मेरे दोस्तों, यहां पर एलिया ने कहा, तुम तब कब तक डामाडोल रहोगे? या तो बाल की प्रस्तिश करो या फिर मेरे खुदा को जिंदा खुदा कबूल कर लो। और मेरे दोस्तों, दो मजबे बनाए गए, हम बखूबी जानते इस बात को। एक मजबा बाल के पुजारियों ने, गैर मबूदों के मानने वाले लोगों ने बनाया, और एलिया ने दावत उनको दी, जाओ अगर आपके मजबा पर कोई आग आ जाए तो मैं बाल का पुजारी बन जाऊंगा, मैं बाल की पूजा करूंगा। जाओ आप लोग पहल करें, आग मांगे ताकि अल्टर के ऊपर आग आए। लिखा है वो आग मांगना शुरू हो गए, आग मांगते हैं लेकिन कोई आग नहीं आती। उनका जो मजबा उन्होंने बनाया वो सर्द मजबा पड़ा हुआ है, ठंडा मजबा पड़ा हुआ है। इवन के जो ऊपर कुर्बानी रखी है वो स्मेल दे रही है, सारा दिन गुजर रहा है लेकिन आग नहीं आ रही, आग नहीं आ रही। सो मेरे दोस्तों, फिर एलिया ने और चिढ़ा के कहा, शायद तुम्हारा मबूद सोया ना हो, जगाओ अपने मबूद को, जगाओ, पुकारो ताकि मजबे के ऊपर क्या आए? आग आए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, मजबा ही खुदा की पहचान करवाता है। मजबा ही ये पहचान करवाता है कि अगर कोई खुदा है
तो वो आसमान पर जिंदा यहोवा खुदा है, ये पहचान करवाता है। और मेरे अजीजों, एलिया की जब बारी आई, जब उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस कर लिए, लेकिन आग नाज़िल नहीं हुई, फिर एलिया ने कहा अब आ जाओ। अपने उस जो आइटम उसने बनाया था उसके चुगित पानी को भी डाल दिया गया, कुर्बानी पर भी पानी को डाल दिया गया, मज़बे के चुगित खाली बना के उसके अंदर पानी डाल दिया गया। कुछ बड़ा काम होने वाला था, उनको कुछ सिखाना चाह रहा था एलिया कि मैं जिस खुदा की वर्शिप करता हूं वो आग के साथ जवाब देता है। वो किसके साथ है? आग के साथ जवाब देता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि अब वहां पे कुर्बानी पड़ी है, और लिखा है कि खुदावन के बंदा मर्दे खुदा एलिया ने, और खुदावन ने एलिया की प्रयास सुनी, बल्कि सॉरी आगे लिखा है तब खुदावन की आग नाज़िल हुई और उसने सोपनी कुर्बानियों को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल क्या हुए? गिरे, और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। उनके कहने का ये मतलब था बाल खुदा नहीं है, बाल खुदा रियल अल्टर जो हकीकी मज़हब है ना, वो दूसरे लोगों को घुटने टेकने पर क्या कर देता है? मजबूर कर देता है, मनवाने पर मजबूर कर देता है कि अगर कोई रियल अल्टर है, अगर कोई हकीकी मज़हब खुदा के लिए है, तो वो वही मज़हब हो सकता है जो खुदा के लिए बनाया जाता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, एलिया मर्दे खुदा दुआ करता है। अब ये वो मर्दे खुदा है जिसको आग का साइन दिया गया, और ये दुआ करता है तो आसमान खुलता है, ये दुआ करता है तो आग नाज़िल होती है। और एलिया ने कहा खुदावंद आज ये जान जाए, आज ये जान जाए कि तू ही खुदा है और मैं तेरा क्या हूं? बंदा हूं। अब जब ये वो दुआ कर रहा है तो कलाम खुदा के अंदर लिखा आसमान क्या हुआ? हेवनली फायर चर्च, आसमान क्या हुआ? आग कहां से आई? हजूरी का ताल्लुक कहां से है? आग का ताल्लुक कहां से है? आसमान से। और जब एलिया दुआ कर रहा है, अब लोग चारों तरफ एलिया को घेरे हुए हैं कि देखते हैं अगर एलिया नाकाम हुआ हम एलिया को मारेंगे। लेकिन सुन लीजिए, जो मजबा के पास रहने वाले हैं, एलिया के खुदा को मानने वाले हैं, खुदा उनकी शिकस्त पता के अंदर बदलता है। मर्दे खुदा ने हाथ उठाया है और आसमान खुल गया है, और ऐसा धमाका वहां पे आग का हुआ है कि लिखे के लोग ठहर न सके, मुंह के बल गिरे और इकरार किया कि एलिया का खुदा ही, हालेलुया, 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 एलिया का खुदा ही। काश आज को ये कहे पादरी फरहान का खुदा ही, पादरी महबूब दानिश का खुदा ही, पादरी सागर का खुदा ही, बहन राबिया का खुदा ही। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मजबा जो है ये हमारी हालत बदलता है। जिंदा करके रख देता 450 नबी को जो कलाम से कायल नहीं हुए, काउंसलिंग से कायल नहीं हुए, लेकिन जब मजबा पर फायर आई, ये सीधे हो गए। राइट रेवरेंड, सीधे सीधे हो गए वो। और मेरे अजीजों, जान के कहने पर मजबूर हो गए कि एलिया का खुदा ही क्या है? जिंदा खुदा है, वही खुदा है। मेरे अजीजों, आज हर एक शख्स को अल्टर की जरूरत है, हर एक शख्स को, क्योंकि जहां पे अल्टर है वहां पे खुदा की हजूरी है, जहां पे मजबा है वहां पे खुदा की हजूरी है, वहां पे हालतें बदलेंगी, वहां पे आपकी और खुदा की क्या होगी? मुलाकात, आपकी और खुदा की मुलाकात। लेकिन अफसोस आज अपने घरों के अंदर हर चीज के लिए हमने हर, ये मेरे बेटे का कमरा, ये फलां का, ये फलां का, ये फलां का, तो अल्टर किधर है? मजबा किधर है? मुलाकात की जगह किधर है? चर्च में तो आप आते हैं 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, डेली कहां पे मुलाकात आपकी हो रही है? क्या थोड़ी सी भी जगह नहीं जहां पर अल्टर हो खुदा का? क्या हमारे घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं?
जहां पे घुटने टेक दे खुदा के आगे। भाई महसूस करना होगा, एलिया ने यहाँ पे जगह महसूस की है, कोई दायरा खींचा उसने कि यहाँ पे मैं खुदा का क्या बनाऊंगा, मज़बा। आज जिन घरों के अंदर मज़बे नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बंदा जिसने अपने घर में कोई आल्टर बनाया है, उसकी लाइफ को चेक करें, और वो बंदा देखें जिसके घर में कोई आल्टर नहीं है, कोई मज़बा नहीं है, दोनों की जिंदगी के अंदर बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। वो बंदा जो आल्टर के सामने झुकने वाला है, उसकी जिंदगी के अंदर आपको पाक की आग नजर आएगी, उसके शब्दों से आपको आग नजर आएगी, उसके देखने से आपको पाकरू की हजूरी नजर आएगी, उसके किरदार से आपको पाकरू की हजूरी नजर आएगी। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, फतह हासिल करने के लिए गुनाह और बदी के मज़बों को उठाना होगा। फतह हासिल करने के लिए गुनाह और बदी के मज़बों को क्या करना होगा, डालना होगा। आज मेरी नौजवान बेटियों का ये आल्टर बना हुआ है, मेरे नौजवान बेटों का ये आल्टर बना हुआ है, मेरे भाइयों का ये आल्टर बना हुआ है। इससे मुलाकात, इधर दाएं बाएं, इसके आसपास, इसके आसपास, तो आग किधर है? कोई आग नहीं है। इवन कि जब ये गर्म हो जाता है फिर हम बस करते हैं, वरना अगर इतना टाइम हम आल्टर के पास थे, मज़बा के पास थे, तो वो मज़बा की आग हमें क्या करेगी, बेदार करेगी। आमीन। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों के लिए अपने लिए आल्टर खड़ा करें। एलिया ने आल्टर खड़ा किया, लोग कहने पर मजबूर हो गए, एलिया का खुदा जिंदा खुदा है, वही खुदा है। अगर हमारे लिए आल्टर हो, मैं खुद बताता हूँ, मेरे घर में ना थोड़ी सी भी जगह नहीं थी जहाँ पे हम प्रेयर करें, लेकिन मैंने कहा खुदावन, मेरा घर तो चले बने ही बने, लेकिन मैं अपने घर में आपका आल्टर बनाना चाहता हूँ, आपका मज़बा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा जहां पे मज़बा है वहां पे हालतें बदलेंगी। ऐसे दिनों में हालतें बदलेंगी, साल नहीं लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे, दिनों में हालतें बदलेंगी। अगर आज आप इस मैसेज के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ खड़े होते हैं, तो यकीन करें पादी साहब को आप ही गवाहियां देंगे चर्च में, दिनों में हालतें बदलेंगी आप, क्योंकि मज़बा के करीब हालतें क्या होती है, हालेलुया। सो जदाऊद जो है, इसने अपने बाप का मज़बा क्या किया, जहां पे इसका बाप गैर मबूदों के लिए कुर्बानी देता था, उसको इसने क्या किया, ढाया। जब ढाया तो फिर लिखा उस मज़बे को तमीर किया गया, और वहां पर खुदावंद के नाम की उसने क्या दी, कुर्बानी, खुदावंद के नाम की कुर्बानी दी। सो बड़े सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर, हमारे घर के अंदर ऐसी ऐसी नौजवानों ने जगह रखी है जहां पे उन्होंने बैठ जाना है अपने काम, स्मोकिंग भी हो मखसूस जगह पे बैठ करने के लिए उन्होंने रखी हुई है, ड्रिंक भी उसी रूम के अंदर बैठ के उन्होंने करनी जहां पे वो जगह, ये बदी के मज़बे, जहां पे गुनाह के लिए मखसूस जगह रखी हुई है, इब्लीस के आल्टर हैं, लेकिन इनको ढाएंगे फिर ही हमारी शिकस्त फतह के अंदर बदलेगी। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस हद तक ये मज़बा हमारी हालत को बदलता है। मुशर्रफ बेटा जो है, बाप से लेकर सारा कुछ बाग ले लिया, भाग कर चला गया, सारा कुछ जब खत्म हो गया तो सूअर चराने लगा, उनके दरमियान वो जो फलियां वो खाते थे वो फलियां खाने लगा। लेकिन वहां पर इसको एक सोच है, वहां पर इसने कहा मैं कहां जाऊंगा, बाप के घर। वहां पर स्पिरिचुअली तौर पर इसने आल्टर खड़ा किया। बास लोग कहते हैं पादरी साहब हमारे घर में कुछ जगह नहीं है जहां पे हम दुआ करें। अब ये देखें कि कौन सी जगह है, आल्टर खड़ा किया है, और सोच क्या हो गई है, बदल गई है, सोच क्या हो गई है, बदल गई है। और इसने कहा मैं जाऊंगा कहां पे, बाप के घर में। कहा, जहां पे मज़बा है ना, जिस घर के अंदर सोच बदलेगी, मैं जाऊंगा कहां पे, बाप के घर में, या हवा खुदा के घर में। आमीन। मज़बे घरों के अंदर खड़े करें बच्चे जो आपके, मैं कहता हूं आपके काबू नहीं आते, यीशु के काबू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े फनकार यीशु मसीह के काबू आ गए हैं। पलूस रसूल बड़ा फनकार आदमी था, किसे पादरी ने खिलौना सी देता,
आंदा सी जो मैं जानना कोई जानता ही नहीं, लेकिन ऐसा फिर काबू में आया कि कभी छूट नहीं सका। साडे बच्चे प्रदूषण वध जालम दे नहीं, हमने नहीं पादरी साहब कभी नहीं चेंज हो सकता, नहीं होना। हमारा ईमान ही है भाई, आल्टर अगर आपके घर में है और आप मजबा के करीब झुकने वाले हैं तो यीशु मसीह आपके हर घर के बंदे को कंट्रोल करेगा, आपके घर के सिस्टम को कंट्रोल करेगा, आपके घर के सारे किचन के निजाम को कंट्रोल करेगा, आपके फाइनेंस को कंट्रोल करेगा, आपकी माली हालात को कंट्रोल करेगा, आपकी हेल्थ को कंट्रोल करेगा। लेकिन जब आल्टर के पास जाएंगे तो हाथ पे हालेलुया भाई 450 शैतान दा बंदा होए पैमरा पिया 450 ते कल्ला बंदा पादरी होवे, ओए ओए अकेला अकेला मैन ऑफ गॉड, अकेला मर्दे खुदा। तो मेरे अजीजों 450 बदरुआ ने की कीते मन्या 450 बदरुआ ही सर होना चाहिए। जो लोग वो भाई बड़े वो भी खादम थे, प्रीस्ट थे बुत प्रस्ती के, और वो मानते नहीं थे, लेकिन मेरे अजीजों आग के आगे आल्टर के आगे घुटने टेकने पड़े, मानना पड़ा कि एलिया का खुदा पादरी कुरान का खुदा, हालेलुया। आल्टर का होना जरूरी है, मजबा का होना जरूरी है। भावे 450 की करोड़ा में साहब नहीं बदरुआ साढ़े खिलाफ खलोन ना, लेकिन अगर मजबा है तो उस आग के आगे एक झटका भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम कोई ऐसे हमेशा भी पादरी नहीं, आल्टर के पास रहने वाले हैं, आल्टर के पास रोने वाले लोग हैं, मजबा के करीब रोने वाले लोग हैं। हालेलुया। सो मजबा जो है ये हमारी हालतों को क्या करता है, बदलता है। सो मेरे अजीजों मैं पर्सनली अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर दुआ के लिए आए हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से कोई 15 साल पहले हमारे घर के अंदर भी अबलीस का आल्टर था, इंजदा गजबनाक आल्टर, जेड़ा पादरी करीब आंदा को 4 दिन बेंदा तो फिर टुट जाता। कहने का ये मतलब था बकायदा वर्शिप होती थी। मेरे दादाजी खुद पीर थे, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और किसी पादरी को पास भी फटकने नहीं थे देते, घर में आने नहीं थे देते। फिर इसके अलावा किस हद तक जहालत हो सकती है कि मेरे पापा जो है वो पीर के कदमों के ऊपर अपना मुंह रखते थे, किस कदर हो सकती है ये जहालत। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब जहां जहां पर कोई मैन ऑफ गॉड उतरा है, एलिया उतरा है, तो अबलीस का मजबा, उस पुजारियों का मजबा क्या किया गया, फ्लॉप। ओह हालेलुया। घरां च पादरी एवं नहीं आते, गल याद रखो, जेड़े ते अनॉइंटेड ने ना मैन ऑफ गॉड, अगर उनके घरों में जिस कोने के अंदर डेविल का आल्टर है, मर्दे खुदा अगर आया तो वो क्या हो गए, वो सारे आल्टर क्या किए जाएंगे, ढा दिए जाएंगे, वो सारे के सारे आल्टर बर्बाद किए जाएंगे। सो मेरे अजीजों हमारे घर में मर्दे खुदा मैन ऑफ गॉड पास्टर रेवरेंड महबूब दानिश साहब भी वहां पे आते रहे, और मैं कहता हूं 8-8 घंटे दुआ करते थे, और ऐसी आगे से इनको मतलब सुननी भी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी उस आल्टर को हिट करने के लिए, उस आल्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने वहां पे बड़ी मेहनत की। और मेरे दादाजी जो पीर साहब थे वो भी मनकना वो तस्बीहां वो भी सिलसिला करते थे, इन्होंने दुआ शुरू करी, उधर से अपना काम शुरू हो गया। चल मेरे भाई मैंने आज की बात है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एलिया और मर्दे खुदा का सीन था वो पुजारी की तरह। उन्होंने वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मर्दे खुदा एलिया अपने खुदा को याद कर रहे हैं। कोई पढ़ाई नहीं ठहर सकती, कोई तस्बीह ठहर नहीं सकती, कोई जादूगरी ठहर नहीं सकती। जब आग उतरेगी तो जादूगरी का सवाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों बड़ी बड़ी बातें इनको सुननी पड़ी, घर से जगह ना मिली है ना एक नाल ताई दी जगह उठे दुकान से 8 घंटे, फिर चलो मेरे भाई होंगे मोटी गए पे खुदावंद यहाँ पे रिवाइवल आए,
खुदावंद यहाँ पे तेरा मजबा खड़ा हो। हम छोटे छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी हमें। और एक मैं आज आपको बात बताना चाहता हूँ, मजबा के लिए जो जो लोग खड़े हुए हैं ना, है जिन्होंने मजबा बनाया है या बनाने में हम किरदार अदा किया है, वो शख्स आम नहीं रहे बल्कि खास हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ एक मेरी माँ थी जिसने ये डिसीजन लिया कि मैंने इस आल्टर के आगे नहीं झुकना। बकायदा दिया जलता, अगरबत्तियां जलती, बकायदा जगह बनाएगी। पुराने वक्तों के अंदर कच्ची दीवारें हुआ करती थी, और पता है वो दीवार के अंदर ही बनाए जाते थे, जहाँ पे दिए रखे जाते, मजबे इब्लीस के बनाए जाते, अगरबत्तियां जलाई जाती। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मजबा बनाने वास्ते ना बढ़िया बढ़िया मारा खानियां पे दिया थे। मेरी माँ ने बहुत सारी मारे खाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि मजबे के खिलाफ खड़ी थी, बहुत ज्यादा। फिर इसके अलावा डिवोर्स तक बातें भी पहुंची, क्योंकि इब्लीस उनकी लाइफ को खराब करना चाह रहा था। अच्छा तू मेरे खिलाफ कलौती कर लाने तेरा लाज। मजबे को तमीर करना और बनाना ये कोई आम बात नहीं। जब तक आपके साथ के खुदा का खादिम मैन ऑफ गॉड ना खड़ा हो, कभी आप मजबे को खुद तमीर ही नहीं कर सकते। ये बात याद रखें। 450 बदरुआ जिनके हदिया ना हला कर रख छड़ दिया, लेकिन जब मर्दे खुदा साथ खड़ा हो तो बदरुए हिलना। हालेलुया। और फिर ऐसा हुआ कि बड़ा कंट्रोल किया हमारे घर में। हर साल देगे बनती, मज़ार के लिए चद्दरें चढ़ाई जाती, बड़े बड़े इस तरह के इश्यूज किए जाते, मामलात होते थे। और इवन कि हमारे घर के अंदर किसी पास्टर को आने की दावत नहीं दी जाती थी, जो आ जाता बेइज्जत करके निकाल देते थे। इस कदर खतरनाक डेंजर फैमिली थी मेरी। बेइज्जत करते थे, पादरियों के साथ उल्टे उल्टे सीधे सीधे सवाल करते, शक करते, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्त गुजरता गया, फाइट जारी रही कि बनाना किसका मजबा है? खुदा का। किसका मजबा बनाना है? खुदा का मजबा बनाना है। अभी 2008 के अंदर भी हमारे घर के अंदर मजबा नहीं था बना। 2008 के अंदर मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा आ चुका था, मैं 8 क्लास के अंदर पढ़ता था। लेकिन मेरी माँ की कोशिश जारी रही कि मजबा बनाना है। और मर्दे खुदा चले जब भी इनको टाइम मिलता पंजाब से, ये स्पेशल रिश्तेदारी अलग की बात है, रिश्तेदारी होती है आके रोना खुदा दे हुजूर, दुआ ना करना, 8-8 घंटे 10-10 घंटे झुकन ना। लेकिन इन्होंने प्रेयर की, ये ठहरे रहे कि यहाँ पर खुदावंद आपका आल्टर क्या हो, आपका मजबा क्या हो, खड़ा हो। और मेरे अजीजों, वक्त गुजरने के साथ साथ मैं आज एक और आपको दिल की बात बताता हूँ। जब मैं तकरीबन 16 साल या 15 साल का था ना, मेरी माँ ने कहा बेटा एक बात आपको बताती हूँ, जब तू पैदा होने वाला था मैंने खुदा से कहा था खुदावंद एक बेटा चाहिए, और वो बेटा मैं क्या करूंगी, तुझे दे दूंगी, इसलिए ताकि नस्ल की हालत क्या हो जाए, बदल जाए, हमारा घराना जो है वो क्या हो जाए, बच जाए, बदल जाए। लेकिन मेरे दादे को ये बात पसंद नहीं थी, डैडी को बात ये पसंद नहीं। उन्होंने कहा ना साड़ी सीट दे मुंडा साडा देगा, जेडी साड़ी सरकारां दी सीट है पीरां दी इत्थे देगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब मजबे के लिए जुस्तजू की जाए, मजबे के लिए को खड़ा हो जाए, तो हालतें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। और खुदा के खादिम जब नया नया मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा मिला ना, कि अच्छा भाई बात है जे पुत्र, अगर आपके साथ खुदा है ना, 1 साल के बाद मैं आऊं तो ये घर क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। और भाई 1 साल दे विच ये कोई तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, कहाँ से 8-10 लाख बंदा लेके आए, कहाँ से लेकर आए, कोई जॉब नहीं थी, ठीक है, कोई बाहर नहीं था गया, आउट ऑफ कंट्री। लेकिन मैंने चैलेंज कबूल किया, ओके मैं रिसीव करता हूँ कि मेरे साथ क्या है, खुदा है। और ऐसा ही हुआ, मैंने घर वालों को बोला, मैंने कहा मैं घर बनाना शुरू करने लगा। उन्होंने कहा कैसे बनाएंगे? 10 मैं एवेंजलिज्म खिदमत करता था, एवेंजलिस्ट था, और 10,000 रुपया मेरी सैलरी थी, और 10,000 की कमेटी डाल दी मैंने कहा रास्तबाज के हाथों की कमाई को भी खुदा ब्लेस करता है। और मेरा ये मान है, ये 10,000 हजारों में नहीं रहेंगे, बल्कि ये किन में जाएंगे, ये किन में जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, ईद उल क़यामत अल मसीह ईस्टर का जब वक्त गुजर गया, मैंने कमिटमेंट खुदा से की थी दिसंबर के बाद कि मैंने घर को बनाना है, और घर में फिर मैंने आल्टर खड़ा करना है, मैंने घर में मजबा खड़ा करना है। मेरे डैडी ने कहा एक कमरा बना ले, मैंने कहा नहीं, ये सारी जगह बनानी, क्योंकि मेरी कमिटमेंट खुदा से, किसी इंसान से
नहीं है। वो कहने लगे मटेरियल बड़ा महंगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कमिटमेंट की, मैंने कहा किसी से मैं लोन नहीं लूंगा, मैं किसी से कर्ज नहीं उठाऊंगा, और ऐसा ही हुआ, किसी से मैंने कर्ज नहीं उठाया, बैंकों से मैंने किस्तें नहीं ली, मैंने सूद पे पैसे नहीं लिए। मेरी कमिटमेंट किसके साथ थी? खुदा के साथ थी, उस खुदा के साथ जो आग के साथ क्या देता है? जवाब देता है। और ऐसा ही हुआ, ईश्वर के फौरन बाद घर डालना शुरू कर दिया ईमान से कि मेरा खुदा मेरी मदद करेगा। आसपास के मोहल्ले वाले परेशान कि पादरी साहब काम शुरू कर दी, तेरे पैसे कितों आएंगे? मैंने कहा मेरे पैसे उधर से आ रहे हैं जो पैसों को देने की क्या रखता है, जो ये वादा करता है कि मैं कौमों की दौलत से लाभ की मानत तेरे पास भेज दूंगा। हालेलुया। सो ईमान से डालना शुरू किया, कुछ भी परेशानी ना लगी। महीने डेढ़ के अंदर ढांचा खड़ा हो गया, छत की बारी रह गई। लोग कहने लगे अब पादरी फंस गया। मैंने कहा नहीं, अब भी ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आसमान खुला हुआ है, मैंने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि आसमान के खुदा के आगे हाथ फैलाया है। मेरी ये डिजाइन थी, 2 कमरे हम फैमिली के लिए बनाए, 1 कमरा खुदा के लिए, जहां पे खुदावंद का आल्टर बनाए। आल्टर की अहमियत बताने लगा हूं आपको। और फिर ऐसे ही हुआ, बन गया। जो फर्स्ट ऑफ ऑल घर के अंदर इंटर होते ही साइड पे जो कमरा है वो मैंने खुदा के आल्टर के लिए मुकर्रर किया, उसको मैंने बना भी लिया। और फिर मेरे जो जब वो बन गया है, आल्टर बना है, हमारी हालत ये थी, दादा पीर, फिर मेरे डैडी जो है वो बुत परस्त, यानी कि वो भी पीरों की तरफ, नस्ल सारी लानत के अंदर, क्योंकि तब हमारे घर के अंदर अबलीस का आल्टर था। लेकिन मेरे अजीजों, एक जब औरत खड़ी हुई, मर्दे खुदा साथ खड़े हुए, तो अबलीस का मजबा ढाया गया। और जब वो मजबा ढाया गया, खुदा का मजबा खड़ा किया गया। मेरे डैडी वो जो पीरों के आगे झुकने वाले थे हर संडे, वो अब मजबा के आगे झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालतें बदल गई, हालतें बदल के सुनौनी करने वाले जो थे वो छोड़ गए, इसके अलावा जो मारने वाले थे वो छोड़ गए, बदल के रख दिया सारा कुछ मजबे की आग ने। हालेलुया। और आज भी मैं उसी मजबा के आगे पड़ा रहता हूँ। मैं और मेरा प्रेयर रूम, बेशक मैं एक शादीशुदा हूं, लेकिन मैं अपना खास वक्त जो है मजबा के करीब रखता हूं, तो वो मेरा और मेरे खुदा का है। हालतें ऐसे नहीं बदलती, मजबा के करीब रहेंगे तो हालतें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। घर में जगह देनी पड़ेगी खुदा को, दिल में जगह देनी पड़ेगी खुदा को, फिर जाके हमारी क्या होंगी? हालतें। वरना कभी हालतें नहीं बदल सकती। ये चो निकल आओ, नौजवान नस्ल निकले इसमें से और आल्टर खड़ा करे घर में, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अक्सर औकात सोचता हूँ, दिल ही नहीं करता फोन चलाने भाई। आग, जब मजबा की आग तब्दीली है जब मजबा की आग के पास रहेंगे तो हालतें क्या होंगी? बदलेंगी। और आवाज क्या निकलेगी? वही खुदा है, वही। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, दुनिया का अजीम तरीन आल्टर लगाया गया था कलवरी के मकाम पर। हालेलुया। उस आल्टर से किसी एक शहर की हालत नहीं बदली, और किसी एक मुल्क की हालत नहीं बदली। मेरे अजीजों, वो ऐसा आल्टर था कि वहां पर तमाशे के लिए लोग भी बड़े आए थे। देखते हैं जो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, आज वो यहाँ पे क्या करेगा? वो आल्टर पर कुर्बान हो रहा है, वो आल्टर पर अपनी जान दे रहा है। कील ठोकने वाला कील ठोकता है, मुंह पर ब्लड के छींटे पड़ते हैं, और फिर जब वो सुनता है कि ये शख्स, ये खुदावन, तो ये कह रहे हैं कि ऐ बाप इनको क्या कर, क्योंकि ये, और वो भी चिल्ला उठा, बेशक ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। जो भी बंदा आपके घर में, आपके चर्च में आए, वो चिल्ला उठे कि बाकी ये तो मेरा कार्ड है, ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसके साथ जुड़ा हुआ है? मजबे के साथ। क्योंकि मजबे पर खुदा की क्या है? आग है, और आग ही बदलती है। गुनाह की आग नहीं चाहिए खुदा को। और हमेशा ठंडी जगह पर मक्खियां बैठेंगी, ये बीमारियां लानते हैं,
मज़बा के करीब रहने वालों के ऊपर कभी मक्खियां चलेंगी, वो भस्म हो जाएगी। सो मेरे अजीजों, आज जो अजीम तरीन अल्टर कलवरी का है, हमें जरूर सोचें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबको उस अजीम अल्टर की तरफ रूम में लेकर आना चाहता हूं, उस अल्टर की तरफ लेकर आना चाहता हूं जहां पर आपके लिए मौजूदात के दरवाजे खुलते हैं, आपके लिए बहाली के दरवाजे खुलते हैं, आपके लिए कुदरत के दरवाजे खुलते हैं, आपके लिए शिफा के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि वही ऐसा अल्टर है जहां पर खुदा का बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। वही ऐसा अल्टर है जहां पर मेरे अजीजों पूरे जहान की निजात का ऐलान हुआ, पूरी दुनिया की निजात का ऐलान हुआ, आपकी निजात का ऐलान हुआ, और वो कलवरी का मुकाम तारीखी मुकाम बन गया। आज आपके घरों के अल्टर तारीखी अल्टर बन जाए, आज आपके चर्चिस के अल्टर तारीखी अल्टर बन जाए। शहरों से लोग उस अल्टर के करीब आए और चलाएं कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, इनका खुदा जिंदा खुदा है। आज खुदा आपकी हालतों को बदलना चाह रहा है, आज खुदा आपके बच्चों की हालतों को बदलना चाह रहा है, आज जो बेटे नशे की हालत में उनकी हालतों को बदलना चाह रहा है, आज जो बच्चे आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं उनकी हालतें बदलना चाह रहा है, आज जो बदलू गिरता है उनकी हालतों को बदलना चाह रहा है। आज बदरुए घुटने टेकने वाली यीशु मसीह के आगे और ऐलान करने वाली है कि यीशु ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। हाथों को बात करें, हाथों को उठाए कलीसिया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सोचना शुरू करें, सोचना शुरू करें कि कहे खुदा से, खुदा मैं अपने घर में, अपनी जिंदगी में तेरे लिए अल्टर खड़ा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा अल्टर खड़ा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा अल्टर बनाने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरी हालत बदल जाए, मेरे घराने की हालत बदल जाए, मेरे साथ जुड़ी जिंदगियों की हालत बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। काश आज आप एलिया की तरह खड़े हो जाए, काश आज आप जगह की तरह खड़े हो जाए, अल्टर बनाने वाले खड़े हो जाए, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर काम करे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहूंगा वो लोग खड़े होंगे जो लोग चाहते हैं कि उनकी हालतें बदलें और अपने घरों में वो अल्टर बनाना चाहते हैं, ताकि उस अल्टर के ऊपर आग आए, फायर आए। वो लोग खड़े हो जाएंगे जल्दी के साथ, प्रेस। और मेरी रिक्वेस्ट है खुदा के साथ से वो अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। यहाँ पर आज एक एरिया नहीं है, यहाँ पे कई एरियाज आपके सामने खड़े हैं, उन लानतों के खिलाफ खड़े हैं, उन स्पिरिट्स के खिलाफ खड़े हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके बच्चों को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके लिए दरवाजों को बंद किया हुए हैं, लेकिन वो आज यीशु नाम में खुलेंगे, वो यीशु नाम में खुलेंगे दरवाजे आपके लिए, वो यीशु नाम में खुलेंगे आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कलीसिया दुआ करेगी हाथ उठा के। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू करें, टंग प्रेयर में शुरू हो जाए, टंग प्रेयर में शुरू हो जाए, क्योंकि पाकों के शोले भड़कने वाले, पाकों के शोले भड़कने वाले। और शो से हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। कुदरत आपके बदन में उतर रही है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे खुदा तेरे हजूर तेरे पास, वो तेरे छोड़ है, वो तेरे ख्यालों में काम कर रहा है। शिकारा बराबर, शिकारा बराबी, शिकारा बराबर भी, और बराबर जबरा बराबर शिकार भी, जबरा बराबर रबी रबाला शिकारी शिका आमीन। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए रखिए, थोड़े थोड़े उठाए ताकि आप थक ना जाए। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिए। बहुत ही बाबरकत खुदा के अजीम खादम ने मस्बा के तलक से बातें बताई हैं। बेशक खादम होते हुए भी हमारी हालतें उस तरह बेहतर नहीं हो पाती। हम दुनिया के मामलात में चले जाते हैं,
हालांकि हम खुदा ही का काम कर रहे होते हैं, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि मज़बा पर आग जलती रहे, बुझने ना पाए। हर किसी को जरूरत है कि उसका मज़बा बहाल हो जाए। जो अपने कदमों पर बैठे मैं चाहूंगा वो भी खड़े हो जाए। मैं यहाँ रूल को मुझे जो बता रहे हैं कि सबके घरों के अंदर मज़बे होने चाहिए। कुरान भी अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। मज़बा हर एक की जिंदगी में बहुत सारे मज़बा को मिस कर रहे हैं और उनके वो बेशक खिदमत में, लेकिन मज़बा उनकी जिंदगी में बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहा। आए मज़बा पर बुझी हुई आग को जलाएंगे, जलाएंगे मज़बा पर आग को जलाएंगे। खुदा के खादिम सुनिए, जगह बहुत कम है, वो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरा ईमान है आप ईमान से कबूल करें। वो जब हाथ बढ़ाएंगे आपके लिए दुआ करेंगे और रूह कुदस की आग छू जाएगी। लेकिन ईमान सुनने से होता है, सुनना मसीह के कलाम में से, और कुरान सुने। बरकत होना चाहते हैं, अगर आप दुआई का मज़बा बनाना चाहते हैं, वर्शिप का मज़बा बनाना चाहते हैं, मेरे बेटो बेटियों आज वक्त है, आज वक्त है। ये इंतजामिया सरकार से चले फिरे नहीं, जहाँ कहीं कुछ को खड़ा हो जाए, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। बड़ा मेहरबानी करके कुदस को रंजीदा मत कीजिएगा, आप उनको काम करने दीजिए। आप उतर रहा है, आप उतर है सफर। हालेलुया। आइए अपने हाथ बंद करके रूह में दुआ करें। हालेलुया। रेसे केले में दरोशी ओ रा बा 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 सोकोलो दरोसो रे kana mandoro kolone kana doroshi Jesus name hallelujah hallelujah ra ba 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 लोग बहाल होना शुरू हो रहे हैं। la sakara mandoroshi la sakara mandoroshi yes la sakara mandoroshi Hallelujah, 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 hallelujah. Rasa kana mandoroshi karabia rasa. Sara ba 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 ba. Hallelujah. Praise. Rasa kana mandoroshi karabia rasa. Rasa kana mandoroshi. Oh, rasa kana mandoroshi karabia. Hallelujah. हो चुकी है, मैं आपका खादिम होते हुए जिंदगियों को यीशु नाम में शाम रिस्टोर करता है। राइट नो, राइट नो, राइट नो। फैमिलीज रिस्टोर होना शुरू, यीशु मसीह के नाम में फैमिलीज रिस्टोर होना शुरू। जिनकी दुआएं जिंदगियां डिस्टर्ब हो चुकी हैं, रिस्टोर हो यीशु मसीह के नाम में, रिस्टोर हो यीशु मसीह के नाम में। लोसिका नाम अंदर शिका हालेलुया जीसस हालेलुया राबा बाबा राबा 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 लासा का नाम अंदर आई खुदा से कहे खुदा मैं आजाद होना चाहता हूँ, मेरी फैमिली आजाद होना चाहती है। यकीनन आज मजबा की आग आपको छूने वाली है, मजबा की आग आपको छूने वाली है, आपकी खिदमत रिस्टोर होगी। और रसिका नाम अंदर शिकारा भी आला बारा 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 प्रेज लासा का नाम अंदर शिकारा भी आला बारा 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 शो लासा का नाम अंदर शिकारा लासा हालेलुया रा बाबा 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 लासा प्रेज सोकोलो भी आला बाबा 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 लासा हालेलुया रा बाबा 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 मंदर शिकारा री आला लासा in the name of Jesus। हर वो दरवाजा जो अबलीस ने खुदावंद तेरे लोगों के लिए खोला है, हम आपके दास होते हुए दरवाजों को बंद करते यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों के दरवाजे बंद होना शुरू होता है, लानतों के दरवाजे बंद होना शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ये जिंदगियां रिस्टोर हो, यीशु मसीह के नाम में जिंदगियां रिस्टोर हो। हर वो अबलीस के बंधन जो
इनकी जिंदगियों के ऊपर बंधे हुए हैं, इनके फाइनेंस पे बंधे हुए हैं, इनके बच्चों पर बंधे हुए हैं, हम यीशु नासरी के नाम में उन बंधनों को ब्रेक करते हैं। राइट नो, राइट नो, राइट नो, राइट नो, राइट नो, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। आपका लोगों को छू है, आपका पार्टनर सबको छू है, आपका पार्टनर सबको हाथ में बदलना शुरू हो जाए, 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 हाथ में बदलना शुरू हो और इसमें टच in the name of Jesus, in the name of Jesus, fight in the name of Jesus, fight in the name of Jesus, fight in the name of Jesus, Hallelujah. Hallelujah. fight in the name of Jesus, fight in the name of Jesus। Shut up your lips, इसको छोड़, right now, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। सारी लामतें उठाओ, उठाओ अपनी लामतें, सारी बीमारियों को उठा इस बदन से। और मैं कमांड करता हूँ, राइट नो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये लाइफ इस जीवन रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस, रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस, रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस। और सीखा ना मत सीखा ना मत, प्रेम मैं वो अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस।
सुनिए, खुदा बहुत बड़ा दौर है। लोग आजाद हो रहे हैं, खुदा का रूप आ रहा है। लोग हाई पा रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। जगह कम है, आप अपनी ना फैलाएं, बल्कि जिसे दुआ की जरूरत है वो अपने सर पर हाथ रखे। जगह कम है, वो नहीं जा सकते। जो दुआ करवाना चाहता है अपने सर पर हाथ रखिए, सरों पर हाथ रखिए। जो दुआ करवाना चाहते हैं, हालेलुया, वर्शिप जीसस नेम, हालेलुया, जीसस नेम, जीसस
खुदावंद आपको बरकत दे। जल्दी से चेयर इंतजामिया से रिक्वेस्ट है वो उसी तरह लगा दे। हम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदा बहुत जल्द हमें बड़ी जगह पर लेकर के जाए। मेरा ईमान है कि इन्हीं महीनों के अंदर खुदा हमें ले जाएगा। हालेलुया। मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो दूर दराज से एक ही वक्त में एक ही कॉल पर सब जमा हुए। और मेरा आप सब से प्रॉमिस है, अब ये लोग फटने वाले हैं। हालेलुया। अब लोग फटने वाले, आपके वसीले बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने खुदा ने बड़ा काम किया है। आमीन आमीन। बहुत सारे लोगों का ये ईमान होता है कि खादिम सर पर हाथ रखेगा तो फिर बात बनेगी। नहीं, उस सूबेदार जैसा ईमान रखे। उसने कहा तू कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाए। हालेलुया। उसका रूह कुदस आगे पीछे से हमें घेर लेता है। इंतजामिया प्लीज बैठ जाइए जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छिपके आगे मेरे पता ही नहीं लगा। टच होली स्पिरिट। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मस्कों पर आग जलती रहे, और जो मस्कों पर खादिम आग जलाते हैं उनके लिए दुआ करना भी बड़ा जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। जब रूह न होवे दुआ ते बोझ से, और जब तक हम रूह में दुआ नहीं करते फिर बंधन नहीं टूटते। और रूह में दुआ करने के लिए जलती हुई आग के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने कलाम से बरकत पाई है? मैं फिर कहता हूँ कितने लोगों ने कलाम से बरकत पाई है? जिन्हें तो दो हाथ में दो चुका। हालेलुया। मैं खुद अकेला पढ़ाया पास्टर हां। हालेलुया। एक जगह से कलाम सुनान गए सखर से, तो जे कलाम शुरू भी नहीं कीता, एवें टिकियां पिया बदरुआ हो मैं तो कलाम ते सुनाया नहीं। तो जो जारी हो ना कलाम की कुदरत के कलाम के दुआनी लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि कलाम के अंदर कुदरत है। ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम है। ये जो मर्दे दुआ है, मर्दे खुदा है, मजलूम पर आग जलाने वाले हैं, इनके कहने से खुदा काम करता है। जिन्ना दुआवां कीतियां ने घंटे उन्होंने फिर फाड़ करने की लोड़ को नहीं है, सिर्फ वो कह दे तो लोग शिफा पाने। मेरा ईमान है जो बे औलाद है वो अपने कदमों पर खड़े हो, जिनकी शादियां तो हो चुकी है लेकिन अभी तक बच्चे उनकी गोद में नहीं है, वो खड़े हो जाए। खुदा का रूह कुछ कहने जा रहा है। बंदे भी खड़े हो जाए, चुप के क्यों खड़े हो? शादी नहीं की, खड़े हो जाओ। शाबाश। माजर टीना नु कहना पैंदा हर बारी स्टैंड अप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब खुदा ने काम करने लगा। हालेलुया। कि मन इतना पैसा दे देने को टेस्ट करवाई जाते हैं। आज मस्बत तरफ रो कर लो, कोई टेस्ट करा दो। हालेलुया। अब्राहम को कहा मैं तेरा खुदा हूँ, आइंदा मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। उन्हें क्या है, तो कबूल कर लिया। हंसे जरूर सन। देखो हो सकता आज भी कई लोग हंस रहे हो, लेकिन हंसो जरूर पर ईमान नाल हंसो। ईमान की निगाह से देखो, आइंदा इसी साल के अंदर खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। सो दोनों काम खड़े होंगे, उन्हीं की वजह से आज खुदा का अल्टर सजाया गया है। मैं चाहूंगा कि इन जोड़ों के लिए वो दुआ करें। आइए आंखों को बंद करेंगे। और जल्द वाइंड अप करने को जा रहे हैं। पादी फरहान साहब ने बिल्कुल जो आंखों को बंद रखिएगा, जो ये बात की है, ये बात मुझसे स्किप हुई है। क्योंकि जब मैं और पास्टर महबूब दानी साहब आल्टर के सामने ठहरे हुए थे, इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। सही है। तो ये कि मेरे दिल के अंदर ये बात थी कि हम लोग दुआ करें उन लोगों के लिए भी जो बे औलाद हैं। अपने हाथों को बुलंद करेंगे लोग। इन हाथों में कुछ खुदा देने वाला आपको। ये हाथ खाली है लेकिन खुदा कुछ देने वाला है। रसीद करिएगा यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम। यीशु मसीह के नाम से पाक खुदा इन जोड़ों के लिए हम मुतफिक होकर खुदा तेरे पास आते हैं
खुदा हर पेट की लानत इनके बंधनों से अलग हो जाए। हम यीशु नाम में हर बंधन को ब्रेक करते हैं, उलाट के इनको ब्लेस करते हैं, यीशु नाम में ब्लेस करते हैं। ये गवाही के साथ लौटे, हर वो दरवाजे जो जादूगरी की वजह से बंद किए गए हैं हम उनको खोल देते हैं, तोड़ देते हैं यीशु नाम में। और खुदा ये आइंदा साल गवाही के साथ इस चर्च में लौटे यीशु मसीह के नाम में, और हमारा ईमान है ये गवाही के साथ लौटेंगे। अपनी हीलिंग को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग को रिसीव करें, कहे मैं रिसीव करता हूँ, मैं पेट की बरकत को रिसीव करती हूँ, मैं औलाद की बरकत को रिसीव करती हूँ। रिसीव करें क्योंकि आपके लिए ऐसा मुमकिन हो चुका है, ऐसा हो चुका आपके लिए यीशु नाम में। आमीन आमीन। बैठिए, खुदावंद आपको बरकत दे। साउंड सा डाउन दी जवाब दे गया पर गले नहीं जवाब देते। हालेलुया। जवाब दे गया कोई बात नहीं, लेकिन गले अभी बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी बातों के लिए दुआ, और जो लोग खुदा के लोगों ने उसमें से दिया हुआ है उसके लिए भी दुआ। यस खुदावंद आसमानी बाप तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि तूने हमें दूर और नज़दीक से जमा किया ताकि तू हमें बरकत दे और बरकत पर बरकत दे। ऐ खुदावंद हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने खादिम को दूर से लाया है ताकि वो हम सब की बरकत का सबब बने। ऐ खुदावंद तूने उसमें से होकर हम सब से कलाम किया है कि अपने घरों पर मजहबों को कायम कर। ऐ खुदा अता कर, ऐ खुदा अता कर। यहाँ जो फैमिलीज बैठी हैं जिन्होंने कहा है उनकी मदद रुपए पैसे से और दीगर तरह से उनकी मदद कर मेरे खुदा, ताकि वो अपने घरों पर मजबे बना सके। खुदावंद अपने लोगों को छू और बरकत दे। जितने लोगों ने शिफा पाई है यीशु मसीह के नाम में उनकी शिफा कायम रहे, ऐसा हो। और खुदा तेरा नाम तेरे लोगों की जिंदगी में जलाल पाए। ऐ खुदावंद अपने खादिम को छू और जगह बजगह अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ तेरे लोगों पे ठहरा रहे। इस चर्च के लिए, इस चर्च के खादिम के लिए, उनके घराना के लिए तेरे हजूर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। मैंने एक जिंदगी को छू और बरकत दे। जितने लोगों ने अपने हाथ को तेरी तरफ बढ़ाया है तेरा हाथ भी बढ़े और तेरा नाम जला पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगा सो पाया। आइए अपने हाथ बुलंद कीजिए, वही दुआ करते बा आवाज में बुलंद जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ तमाम दुनिया के मसीह मुक़द्दसीन के साथ जा बजा बसते हैं आप से लेके हमेशा तक होती रहे। खुदावंद की सलामती आप सबको। खुदावंद रास्तों में आपकी रहनुमाई करे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत ज़्यादा वक्त अपना दिया। मेरा ईमान है कि आप बरकत से भर गए हैं। आमीन।